students. Good evening to all of you. बच्चों, in previous class I taught you about the depreciation causes, in which I taught you बच्चों about the physical causes, and today's topic is बच्चों functional causes of depreciation. Before that, I taught you about the introduction, meaning, definition with examples, then characteristics and objectives of बच्चों depreciation. So before going to start बच्चों, the next causes, that is the functional causes, and becomes a very important question so far as your exam is concerned. I told you बच्चों you get 3 marks question from these functional causes. In fact, a good number of MCQ you will get from this बच्चों discussion से आप लोगों को मिलेगा. So बच्चों, as you know, the term depreciation is derived from the Latin word depretium, where D means decline and pretium means price. Thus the combined word depretium stands for decline in the value, a price of an asset in the modern context. I sent you बच्चों एक PDF, आप सभी ने देखा भी होगा. उस PDF पे मैंने डिटेल लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखा होगा. Then again, the depreciation is a chargeable revenue expenditure to profit and loss account for the determination of exact profit and loss and financial position of a business. Depreciation is a nominal account in nature, so it appears on the debit side of profit and loss account, and बच्चों deducts from the particular assets on asset side of balance sheet. Then I told you बच्चों, आपको बताया था depreciation आपको प्लस 2 लेवल से भी मालूम है, फर्स्ट ईयर से, प्लस 2 फर्स्ट ईयर लेवल से बच्चों. the depreciation mean decrease in the value of fixed asset due to wear, tear or accident, except land and antique. Clear? Then I told you बच्चों 2 or 3 definitions, in which I gave you बच्चों 3 definitions. The first one from बच्चों R.N. Carter, second one सीमा लंडन दिया था आपको. आप कोई भी डेफिनेशन याद रख सकते सभी, और एक आरजी विलियम का भी दिया है. Then बच्चों I taught you about the characteristics, features or nature of depreciation. It is a non-cash items. It may be physical or functional. It is charged only on fixed assets. It is in the process of valuation of allocation of cost, not the valuation of बच्चों fixed asset. It is nominal account in nature. It appears on the debit side of profit and loss account and deducts from the particular assets on asset side of balance sheet. It is always charged in a systematic manner. It is once charged but can't be recouped after. It once charged cannot be recouped after. The total depreciation amount doesn't exceed the depreciable value of an asset. Then the depreciation calculation, the calculation of depreciation is not affected by the fluctuation in sampling. Then I told you बच्चों you can add बच्चों the meaning of the term depreciation with these features in case of long question. Otherwise बच्चों बार बार बोलता 1 mark में only required to write 1 only point, no need to write 2 points. से आपको 10 के 10 आते, हमने लिख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. कंपल्सरी बच्चों मैं रेस्ट्रिक्शन भी दे रहा हूं कि you do not require to write more than 1 point in case of 1 mark, more than 3 points in case of 2 marks, more than 5 points in case of 3 marks. अगर 5 points भी नहीं है किसी क्वेश्चन में, so 3-4 points भी चलेगा. एंड वहां जहां क्वेश्चन में लिखा होगा राइट एनी 2 points 3 points, तो वहां पे 2 points लिखना पड़ेगा. अदरवाइज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द आंसर मैंने आपको बता दिया. नाउ बच्चों उसके बाद द नेक्स्ट थिंग we discussed objectives, needs, importance, to find out the true profit and loss, to determine the true value of asset, to find out the exact cost, to provide sinking fund for the replacement of asset, to avoid the overpayment of income tax, to avoid the overpayment of dividend, we are required to calculate depreciation. These are the importances of depreciation. Clear बच्चों?
देन आई स्टार्टेड बच्चों, मैंने किया कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन. व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन? एंड यू नो बच्चों, द कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन सभी को मालूम है, सभी को समझ में आ रहा है, ऑलरेडी बता चुका हूं. अगर किसी को फिर भी डाउट है तो मुझसे फिर से क्लास लेके सुन सकते हो, या पर्सनल मीट करके भी हम लोग बात कर सकते हैं गूगल मीट पे. डिपेंड्स ऑन यू. किसी को भी डाउट है सो राइट योर डाउट आफ्टर द क्लास, बिफोर द क्लास. अगर मैं नहीं देखता तो उसको फिर से 2-3 बार लिखो. मेरी नॉलेज में, मेरी आंखों में जरूर आएगा तो या मुझे कॉल करके बोलो सर ऐसा प्रॉब्लम है, तो आई विल डेफिनेटली क्लियर, चाहे जितना भी काम हो मुझे. तो फिर अपने कॉजेस में बच्चों हमने पढ़ा फिजिकल कॉज एंड आपका फंक्शनल कॉजेस. I told you बच्चों 3 physical causes about the wear and tear, destruction, decay. Where बच्चों the decrease in the value of assets, the reduction in the value of asset due to wear and tear in use. The more will be the wear and tear, the more will be बच्चों depreciation. The more अगर use करोगे तो more wear tear होगा, more depreciation होगा. And constant use of the asset बच्चों constant wear and tear and constant depreciate होगा. The second point बच्चों destruction, the diminishing in the value of assets, reduction in the value of asset due to बच्चों destruction in accident, जो भी आपका होता है, नॉर्मल एक्सीडेंट हो, अर्थक्वेक हो, साइक्लोन हो, जो भी उन सबको भी लिया जाता है. Then the last point बच्चों decay, the lessening in the value of assets due to the effect of nature, that may be your hot weather, rain moisture, your winter, your climate change, that also बच्चों affect your asset. And the asset value बच्चों also decreased हो जाता है due to such causes, that is known as decay. So today's class I am going to discuss बच्चों what are the functional causes. तो फंक्शनल कॉज किसे बोला जाता है? वेरी केयरफुली, पूरा अटेंशन के साथ क्लास ओवर होने तक सारे स्टूडेंट्स एक जगह बैठ के इधर उधर ना हिल के पूरी क्लास को सुने. So far as my study is concerned बच्चों, my complete focus on clearing your doubts, maintaining discipline. In fact, this is a lockdown period or any pandemic, you know, COVID-19 pandemic situation, so whatever it may be बच्चों, we know that we have been continuing our classes. If you are giving your focus attention on these classes, I don't think, कभी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि आप लोगों को कहीं भी मैंने क्वेश्चन छोड़ा होगा. That depends on your psychology that offline classes only gives you benefit. मैंने इसको चूज किया आपको YouTube पे वीडियो भेजना जस्ट बिकॉज ऑफ क्लियरिंग योर एवरी डाउट्स. क्योंकि इट इज़ ओनली द वे बच्चों जहाँ पे आपको फुल क्लास मिलेगा एंड आपको पढ़ने में, सुनने में, मुझे समझने में, नोट्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अदरवाइज आई कैन ऑल्सो चूज द अदर वेज ऑफ बच्चों क्लास, जहाँ पे बुक्स देख के पढ़ के आपको पढ़ा देता एंड आप बुक्स के पास बैठे रहते. तो पर बच्चों कुछ स्टूडेंट्स जो आप लोग ध्यान नहीं देते, उसको ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा. ओम प्रकाश, शिव प्रसाद, चांद, तुम लोग थोड़ा कोशिश करोगे तो यू विल गेट बच्चों मच बेनिफिट देन योर ऑफलाइन क्लासेस. यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द प्रीवियस क्लासेस जो तुम लोगों ने कभी वो क्लासेस अटेंड नहीं की, वो कर सकते हो. But it is mandatory for all of you. Some students are not listening it carefully. That again I am going to repeat, downloading and sharing our video is बच्चों एक punishable offense है, एक अपराध है, दंडनीय अपराध. तेणुकरी कौन सी पिला शेयरिंग और डाउनलोड करके रखो ना. If you do not have time to attend the class just because of any valid reason, जदि तुम पाखे टाइम नहीं कौन सी निर्दिष्ट कारण जोगु क्लास अटेंड करिया पाई, ताहले यू कैन टॉक टू मी एंड आई विल प्रोवाइड यू द सेम क्लास लेटर ऑन a specific time, so don't worry about that. It's
up to you बच्चों how openly you communicate with me that just because of that particular reason I do not attend the class and it's my responsibility बच्चों कि कैसे मैं आपको क्लास दूंगा, कैसे आपका डाउट्स क्लियर करूंगा, कैसे नोट्स दूंगा, जितनी भी क्लासेस अटेंड नहीं की उसके लिए मैं जिम्मेदारी लूंगा. इट्स माई ड्यूटी. सो बच्चों अगर आपके सर आपकी हर एक बात को मानने के लिए तैयार था, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए. आपको भी अपने आप को पूरा बेस्ट एंड डिसिप्लिन बनाना चाहिए. आप देख ले यहाँ पे और भी लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं बच्चों. यू सी देयर परफॉर्मेंस एंड आवर परफॉर्मेंस. सो बच्चों समझ में आया सभी को. बट माई इंटेंशन इज नॉट टू कॉमेंट ऑन एनीवन, बट जस्ट टू inform you about our way of teaching and our बच्चों methodology and हमारे बच्चों को हमारे से अगर कुछ भी और उम्मीद हो तो उसको वो बोलें एंड उसको हम लोग कोशिश करेंगे पूरा करने की. बट उसके साथ आपको बहुत मेहनत करना. ये नहीं बस मैं ही करता हूँ और आप लोग मेहनत नहीं करेंगे. सो लेट्स मूव टू द बच्चों हमारा functional causes. I told you in the previous class बच्चों we have 5 functional causes है. obsolescence, inadequacy, effluxion of time, depletion and exhaustion. So बच्चों what do you mean by बच्चों obsolescence या obsolescence क्या है? So बच्चों obsolescence क्या है मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं. होप सभी समझ पाओगे. बच्चों पुराने जमाने में, छोड़ो तुम सभी ने देखा होगा, थोड़ा नया एग्जांपल देता हूं. कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले हमारे यहाँ रिक्शा होया करता था. अब नॉर्मली आपको रिक्शा देखने को नहीं मिलेगा. ऑटो रिक्शा नहीं बोल रहा, जिसके 3 पहिए साइकिल वाले होते, साइकिल जो इंसान चलाता है. तो जो रिक्शा होता था जिसमें जो रिक्शा वाला हमें लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाता था, आज क्या वो रिक्शा नहीं है? क्या नहीं बन सकता? कंपनी में बन सकता है. वो रिक्शा है पर लोग आज उसमें नहीं बैठ रहे हैं. लोगों को अपने स्थान पे, अपनी मंजिल पे पहुंचना जल्दी है, वो तुरंत पहुंचना है. उसमें भी बस पहुंचते थे, पर एज कंपेयर टू टुडे आजकल लोग ऑटो रिक्शा हायर करते हैं, कार टैक्सी को हायर करते हैं, या उनका अपना व्हीकल भी हो गया है. तो आजकल कोई रिक्शा में नहीं जाता, या रिक्शा वाला आपको बिठा के इतनी दूर दूर तक अपने पैरों से बच्चों प्रेशर देके पैडल मार के नहीं लेता. सो आज दुनिया चेंज हो गई है. इसका मतलब जो कंपनी रिक्शा बनाती है वो आज की डेट में रिक्शा नहीं बनाती. तो उनकी अगर रिक्शा बनाने के लिए जो भी मशीनरीज होगी, या रिक्शा भी अगर किसी के पास है, सपोज मेरे पास रिक्शा है एंड मैं अगर बोलता हूँ किसी को भैया मेरा रिक्शा खरीद लो, तो वो आज खरीदेगा भी नहीं. चाहे मेरा रिक्शा पूरा नया हो. रिक्शा बोल रहा हूँ जहाँ लोग बैठते, जिसमें लोग बैठते हैं 2-3 जने, ऊपर ऐसे बंद होता है. तो पूरा नया हो बच्चों, पूरा सुंदर हो, अच्छा कंपनी का हो, जो भी उसका होगा कंपनी, फिर भी कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है. एंड अगर बाई चांस कोई खरीद भी लेगा, पूरा नॉर्मल वे प्राइस में खरीदेगा, कोई उसके लिए 1000 रुपये भी देना नहीं चाहेगा. क्यों देगा? वो लेके रिक्शे का क्या करेगा? जब यहाँ कोई नहीं चला रहा तो वो क्या चलाएगा? जो भी हो उसका बच्चा डिमांड, अगर वो चलाने का चाहता भी है तो उसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा. समझ में आए? सो वो चीज पूरी ठीक है, पूरा फिट एंड फाइन है, पूरा गुड कंडीशंस में है, बेस्ट कंडीशन में है, न्यू कंडीशन में है, फिर भी उसका वैल्यू नहीं है बच्चों, ड्यू टू ऑब्सोलेंस. वो आइटम बच्चों आउटडेट हो चुका है, पुराना हो चुका है, उसको आज लोग यूज नहीं करते. वो पूरा ठीक है, फिजिकली कहीं से नहीं टूटा, पर लोग उसको यूज नहीं करेंगे ड्यू टू द बच्चों ऑब्सोलेंट. वन मोर एग्जांपल बच्चों, सपोज आपके घर में स्टोव है जिसको पंप मारते थे मिट्टी का तेल डाल के, केरोसिन ऑयल डाल के. तो बच्चों वो स्टोव आपके घर में आज भी होगा, फिर भी बहुत लोग उसको यूज नहीं कर रहे. घर पे गैस है तो स्टोव, जो अगर सबके पास गैस है बच्चों, अगर मेरे घर पे स्टोव, अगर मैं बोलूंगा भैया कोई मेरे से स्टोव ले लो, तो कोई ले भी लेगा तो उसके लिए पैसा नहीं देगा, बहुत कम देगा. इनफैक्ट पूरा नया स्टोव होगा, मैंने खुद 1000 रुपये खरीदा तो उसको कोई 100 रुपये भी नहीं देगा. क्यों? स्टोव नहीं चल रहा. स्टोव में कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल बच्चों ठीक है, बट
उसका यूज नहीं है, बिकॉज हम लोग नहीं चाहते बर्तन को स्टोव पे बिठा के काला को मांज के साफ करे। बच्चों, आज दुनिया एफिशिएंट होना चाहती है, पुरानी चीजें नहीं यूज करना चाहती। वन मोर एग्जाम्पल बच्चों, इंडिया में जो इंडिया का मेन बच्चों हमारा जो ट्रेडिशनल क्लोथेस है वो खदी है। खदी या खादी बोलते हैं इंग्लिश में। खादी वस्त्र या खादी क्लोथेस होते हैं जो ब्राउन टाइप के कलर के होते हैं। उसको पहले जैसे तुम्हें मालूम होगा चरखा होता था, चरखा से धागा काट के बनाते थे। क्या आज हमारे पास चरखा नहीं है? बहुत चरखे होंगे, पर कोई क्या आज चरखा से काम कर रहा है? नहीं कर रहा। आज मशीनरीज हो गई हैं बहुत सारे बच्चों, आपके कॉटन के, फैब्रिक के, आपके टेक्सटाइल, बहुत सारी बच्चों इतनी अच्छी मशीनरीज आ गई हैं, इतनी अच्छी इंपोर्टेड बच्चों वर्ल्ड की बेस्ट मशीनरी आ गई है। तो आपको चरखा का कोई काम ही नहीं करेगा। एक दिन में जितना आप करते थे बच्चों, 1 घंटे में उसका 50 गुना ज्यादा काम कर लोगे। आज बच्चों और कोई भी उस चरखे का यूज नहीं करेगा। द रीजन इज बच्चों ऑब्सोलेट। रीजन इज ऑब्सोलेट। सभी को फिलहाल समझ में ऑब्सोलेंस मतलब क्या बच्चों? एक चीज पूरी तरह से फिट एंड फाइन कंडीशन में है, न्यू कंडीशन में है, रनिंग कंडीशन में है, बट उसका यूज या उसका वैल्यू या उसका डिमांड मार्केट में पूरा कम हो जाता है ड्यू टू बच्चों हम लोग उससे कुछ अच्छी चीजें को चाहते हैं एंड उसका यूज करना बच्चों धीरे धीरे हम लोग बंद कर देते हैं। तो दैट्स द पॉइंट बच्चों, मतलब आज से एक रनिंग कंडीशन में है, फिट कंडीशन पे है, पर हम कुछ उससे बेहतरीन चीज पाने के लिए उस मशीनरी को, उस चीज को बच्चों हम रिप्लेस कर देते हैं एंड रिप्लेस करते वक्त उसका वैल्यू बच्चों बहुत कम हो जाता है। दैट इज नोन एज ऑब्सोलेंस। वैल्यू कम हुआ ड्यू टू ऑब्सोलेंस। वो प्रोडक्ट बच्चों आउटडेटेड हो गया आपका। समझ में आ रहा है? बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलेंस? जैसे आपको 3 एग्जांपल मैंने अभी दिए, जैसे कि आपको पहला एग्जांपल मैंने दिया रिक्शा का, सेकंड दिया आपका स्टॉप का दिया। क्लियर बच्चों? और एक एग्जांपल दिया ना? नहीं तो आप और एग्जांपल किसी भी, सपोज पहले लोग फाउंटेन पेन यूज करते थे, इंक वाला पेन, आजकल यूज नहीं करते। तो फाउंटेन पेन को बनाने वाली मशीनरी जो काम की होगी वो मशीन को आजकल कोई यूज नहीं करता। उस इंक बनाने की मशीनरी को भी कोई यूज नहीं करता, क्योंकि आजकल वो पेन यूज नहीं होते, बहुत रेयर यूज होते हैं। तो उस मशीन को अगर बेचोगे भी तो कोई नहीं खरीदेगा, आउटडेटेड हो जाएगा। बच्चों व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्सोलेंस? ये क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। बच्चों डिस्कार्डिंग ऑफ एन एसेट, द टर्म ऑब्सोलेंस रेफर्स टू डिस्कार्ड करना बच्चों। डिस्कार्डिंग ऑफ एन एसेट बिफोर इट इज वॉर्न आउट। वॉर्न WORN, एक एसेट को निकाल देना टूटने से पहले, खराब होने से पहले। डिस्कार्डिंग ऑफ एन एसेट बिफोर इट इज वॉर्न आउट ड्यू टू चेंज इन कंडीशन। कंडीशन, क्लाइमेट चेंज हो गया, दुनिया को वो चीज नहीं चाहिए, दैट इज नोन एज ऑब्सोलेंस। इट इज वन ऑफ द बच्चों फंक्शनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। इनको याद रखना है आपको। डिस्कार्डिंग ऑफ एन एसेट बिफोर इट इज वॉर्न आउट ड्यू टू चेंज इन कंडीशन इज नोन एज बच्चों ऑब्सोलेंस एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ बच्चों आपका डेप्रिसिएशन, फंक्शनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। बच्चों फॉर एग्जाम्पल ए मशीन, एनी मशीन, कुछ भी ले सकते हो आप, मैंने स्टॉप बोला, रिक्शा लो, जो भी लो, या सिंपली राइट डाउन बच्चों ए मशीन विच स्टिल वर्केबल, स्टिल रनिंग बच्चों, रनिंग स्टिल इन ए रनिंग कंडीशन, स्टिल वर्केबल, स्टिल बच्चों अभी भी पूरा परफेक्ट गुड एंड रनिंग कंडीशन में है। ए मशीन विच स्टिल वर्केबल में हैव टू बी रिप्लेस्ड विथ अनदर मशीन बच्चों, बिकॉज पीपल बच्चों लोग चाहते हैं लेटर फ्यूचर बीइंग मोर एडवांस्ड, मोर एफिशिएंट, हमें और भी अच्छी चीज चाहिए। हमने 3 एग्जांपल दिए थे बच्चों आपको। एक चरखा जो धागा काटने वाला। बच्चों ए मशीन विच स्टिल वर्केबल, वो मशीन चलती है, वो चरखा अभी भी चलता है, वो रिक्शा अभी भी चलता है बच्चों, फिर भी हम उसको चेंज कर देते हैं बच्चों ड्यू टू लेटर बीइंग मोर एफिशिएंट, मोर एडवांस। हमें अपना भविष्य और भी सुंदर और भी एडवांस देखना है,
सो हम उन चीज़ों को जो पूरा चलती थी उनको चलती हुई कंडीशन में भी छोड़ दे रहे हैं, उनका वैल्यू मार्केट में बहुत कम हो जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेंस. सो ऑब्सोलेंस इज द फर्स्ट एंड वेरी गुड पॉइंट, फंक्शनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. सो इफ एग्जाम में आता है बच्चों, व्हाट डू यू मीन ऑब्सोलेंस? Discarding of an asset before it is worn out is known as obsolescence. It is happened due to such a change in condition. For example, a machine which is still workable in a running condition, good condition, may have to be replaced and its value also बच्चों decreased due to later being more efficient and बच्चों advanced. That is the cause of बच्चों obsolescence and depreciation. obsolescence उसी प्रकार की जो रीजन, ये कॉज है पर इस तरह के कॉज को नाम दिया गया है obsolescence. ना यहाँ पे वियर टियर हुआ, ना डिस्ट्रक्शन हुआ, ना डीके हुआ. यहाँ हमने यहाँ यूज किया ना, ये एक्सीडेंट में टूट गया या रेन मॉइस्चर गर्मी या सर्दी से खराब हो गया. ये पूरा ठीक ठाक रनिंग कंडीशन में है फिर भी इसका वैल्यू कम हो गया ड्यू टू बच्चों obsolescence. Clear? So discarding of an asset due to before it is worn out, discarding of an asset before it is worn out due to later being more efficient due to change in condition is known as obsolescence. A machine which is still workable may have to be replaced with another machine because we want our future bachcho more efficient and advanced. That is known as obsolescence and it is one of the functional cause of depreciation. Next move to the bachcho second point, second functional cause. होप सभी को समझ में आया एंड इसको याद रखना, इट्स योर ड्यूटी बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम बच्चों. डिस्कार्डिंग ऑफ एन एसेट बिफोर इट इज वर्न आउट ड्यू टू चेंज इन कंडीशन इज नोन एज ऑब्सोलेंस. राइट डाउन एन एग्जाम्पल जो मैंने बोला, फिर लास्ट में इट इज वन ऑफ द बेसिक फंक्शनल कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. जहां पे ना एसेट टूटती है ना खराब होती है फिर भी उसका वैल्यू कम हो जाता है. नाउ बच्चों इनएडिक्वेसी, द अनदर फंक्शनल कॉज. बच्चों इनएडिक्वेसी, तो इनएडिक्वेसी मतलब आप समझ में, एडिक्वेसी मतलब क्या, एडिक्वेट मतलब क्या, सफिशिएंट, प्लेंटी, बहुत सारी चीजों को एडिक्वेट बोलते हैं एंड कम को जहां भी हमें पर्याप्त चीज नहीं मिल रही, जहां पे हमें जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, इनएडिक्वेसी. सपोज बच्चों अगर मुझे डेली आज 100 प्रोडक्शन चाहिए एंड वो एक मशीन से काम हो जा रहा है, फिर मुझे फ्यूचर में डेली 200 प्रोडक्शन चाहिए तो मैं 2 मशीन लाया, 300 चाहिए तो 3 मशीन लाया. अगर बाजार में मैंने देखा कि आज मार्केट में सभी दुकानें लगभग सभी कंपनी डेली 300-400 प्रोडक्शन करती है या 500 प्रोडक्शन करती है, तो उनको 4-5 मशीन चाहिए. पर अगर हमें देखने को मिले कि बच्चों ऐसा एक मशीन है मार्केट में जो एक साथ 500 प्रोडक्शन कर सकती है, तो हम 5 मशीन को क्यों चलाएंगे? 5 मशीन को चलाने के लिए 5 ऑपरेटर रखेंगे, 5 का खर्च देंगे, 5 का मेंटेनेंस देंगे, 5 को निकाल के एक मशीन ले आएंगे. हमें अगर 300 चाहिए 300 होगा, 400 चाहिए 400 होगा, 500 चाहिए 500 होगा. ऐसे 5 मशीनें क्यों रखेंगे? तो छोटी मशीन का जरूरत ही नहीं होगा, छोटी चीजों का जरूरत होगा ही नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा. बच्चों पहले जेरोक्स दुकानें छोटे छोटे जेरोक्स मशीन रखते थे, आजकल बहुत बड़े बड़े डिजिटल जेरोक्स आ गए हैं. तो जहाँ पे स्लोली प्रिंट होता है, धीरे धीरे प्रिंट होता है, कस्टमर आगे खड़े रहते हैं, तो वो दुकानदार अगर वैसे ही प्रिंटिंग मशीन रखेंगे एंड अगर 2 कस्टमर तो 2 मशीन रखेंगे, 3 के लिए 3 में, तो उनको फायदा क्या होगा? अगर एक बड़ा मशीन रख दें जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, क्वालिटी ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा है, जहाँ पे बहुत जल्दी से एफिशिएंसी तो नहीं, इफेक्टिवनेस, वो मशीन का जो आपका स्पीड है प्रोडक्शन करने का, उसका जो कैपेसिटी है बच्चों, अगर उससे ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी का सामान बहुत जल्दी मिले तो हम उसको रखेंगे. ऐसे 3-4 मशीनरी क्यों रखेंगे? सोचो. तो मतलब छोटी चीज़ों का डिमांड क्यों कम हो गया, उसका वैल्यू क्यों कम हो गया? कि वो काम नहीं करता? वो काम करता है, पूरा ठीक है. बट बच्चों इनएडिक्वेसी, हमें जितना चाहिए उतना हमें उससे नहीं मिल रहा, हमें उतना पाने के लिए 2-3 चीजें जरूरत पड़ रही है. समझ में आया कि नहीं आया? तो यही है पॉइंट. बच्चों किसी चीज का भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे आएंगे. तो बच्चों द टर्मिनेशन इन द यूज ऑफ एन एसेट, एक एसेट्स को यूज करते करते उसे टर्मिनेट कर देना,
ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ड्यू टू इंक्रीज, मेरा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, मुझे पहले जितना प्रोडक्शन करना था आज उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो मुझे 2 3 4 मशीनें नहीं लगानी, एक मशीन से काम हो सकता है। तो मैंने पुरानी मशीन को दे दिया, वो रनिंग कंडीशन में थी, फिट एंड फाइन थी बच्चा, फिर भी मैंने उसको क्यों एक्सचेंज कर दिया? एंड करते वक्त पैसा जरूर कमेगा, वॉल्यूम कमेगा, पैसा कोई भी उसको यूजली नहीं लेगा, लेगा भी तो बहुत कम पैसा देगा। और इस सभी के पास आजकल ऐसी चीजें हैं, मशीनरीज है जिससे हम ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। सो द बच्चा टर्मिनेशन इन द यूज ऑफ एन एसेट, एक एसेट को बच्चे टर्मिनेट कर देना, टर्मिनेशन इन द यूज ऑफ एन एसेट बच्चा ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एक मशीनरी एक प्लांट मुझे जितना बेनिफिट देता है, अगर 2 3 प्लांट लगाऊंगा, एक प्लांट लगाने से उतना दे सकते हैं, तो उस एक प्लांट को लगाऊंगा। सो मैंने क्यों उसको चेंज कर दिया? The termination in the use of an asset due to improve in the volume of production, sorry increase not improve बोलेंगे, increase perfect language, improve भी लिख सकते हो, due to increase in the volume of production, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। सपोज हमारे घर में 2 जने रहते हैं, तो इतने से एक छोटा सा लेते हैं बर्तन, उसमें खाना बनाते हैं। तो अगर बच्चों 4 जने हो जाएंगे तो ऐसे 2 बर्तन बिठाएंगे, 6 जने 8 जने हो तो 3 बर्तन बिठाएंगे, एक बड़ा बर्तन बिठाएंगे, छोटा बर्तन यूज ही नहीं होगा। सो हमने वो बर्तन चेंज कर दिया, उसका वैल्यू वो कम गया, उसको फेंक दिया, कबाड़ी वाले को दे दिया, दुकान को दे दिया। तो क्यों दिया? बिकॉज हमें उसकी जरूरत नहीं है। सो द टर्मिनेशन इन द यूज ऑफ एन एसेट बच्चों ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन is known as inadequacy and it is the another cause of bachcho depreciation, another functional cause of depreciation. So here an asset which is still workable, still in a good condition may have to be replaced bachcho, just because of its inadequacy it doesn't provide the bachcho required production, जितना प्रोडक्शन हमें चाहिए इतना प्रोडक्शन ये हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती। So due to this reason bachcho we are forced to replace that asset, that is known as inadequacy. In obsolescence I taught you बच्चों, मैंने पढ़ाया, अभी पढ़ाया, have taught you now, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया। बच्चों इन obsolescence आपको बताया मैंने कि discarding of an asset due to change in condition, change in our taste, हमारा लाइकिंग चेंज हो रहा है, तो हमने उस मशीन को रिप्लेस कर दिया। जैसे हमारे घर में सेल में मसाला बांटते थे पहले, जब घर में ग्राइंडर आ गया तो सील को लोगों ने यूज करना छोड़ दिया, सील का डिमांड कम हो गया, कोई बहुत रेयर लोग लेते होंगे उसको। तो वैसे ही बच्चों दैट इज ऑब्सोलेंस। एंड अनदर पॉइंट बच्चों टर्मिनेशन इन द यूज ऑफ एन एसेट ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, यू नीड मच मोर प्रोडक्शन, सो इन दैट केस यू नीड टू रिप्लेस द एसेट एंड द रीजन इज बच्चों inadequacy. Now move to the third point बच्चों, e-फ्लक्शन ऑफ टाइम। बच्चों e-फ्लक्शन ऑफ टाइम सुनो ध्यान से। सपोज बच्चों मुझे ट्रक चलाना आता है, सोच लो मुझे नहीं आता पर मुझे आता है, एंड मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, मुझे हर कोई रखना चाहता है, मैं पूरा एफिशिएंट हूँ, ड्रिंक नहीं करता, पूरा ध्यान से पूरा कॉन्सेंट्रेट पे बड़ी बड़ी लॉन्ग रूट पे जाता हूँ, 4000-3000 किलोमीटर तक ड्राइव करता हूँ, माल को पूरा अच्छे से लेके केयर भी जाता हूँ, गाड़ी का ख्याल रखता हूँ, सब कुछ एफिशिएंट ड्राइवर हूँ मैं। बट बच्चों मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस नहीं है तो मुझे कोई चलाने देगा गाड़ी? तो मेरे ड्राइविंग से मुझे बेनिफिट होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है, जिसका मैं ड्राइवर, जिस कंपनी का, जिस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी का मैं ड्राइवर हूँ। तो बच्चा अगर मुझे बेनिफिट होता है तो मेरे को बेनिफिट के लिए लाइसेंस चाहिए ना, वो लाइसेंस की वजह से मुझे को लोग मानेंगे मैं ड्राइवर हूँ। समझ में आया कि नहीं है? तो वैसे ही बच्चों सपोज मैं सपोज कल्याणी पब्लिशर हूँ या वीके पब्लिकेशन का हूँ, तो मुझे कल्याणी पब्लिशर हूँ, मुझे सपोज आपका बुक किसने लिखा है, ये आपका हम पढ़ रहे हैं अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो जुनेजा चावला, तो उन्होंने मुझे बुक का दिया है बच्चों कॉपीराइट कि मैं उनकी बुक को छपा के बेच सकता हूँ मार्केट में। तो उन्होंने मुझे एक हक दिया है, मैंने उनसे हक लिया होगा,
4 साल, 3 साल, 5 साल के लिए, कि 5 साल के लिए उन्हें मुझे कॉपीराइट मिला है, उस हक को मेरे को मिला है, 5 साल तक मैं जितनी कॉपी बना के मार्केट में बेच सकता हूँ, उनको मैंने उसके लिए पैसा दिया है, प्लस जितना सेल करता हूँ उसके ऊपर मैं उनको रॉयल्टी देता हूँ। ये आपको मैं बताऊंगा, आपको पहले फर्स्ट ईयर में बताया भी कॉपीराइट। तो राइट ऑफ एन ऑथर ओवर इज एवरी बुक बच्चों, ईच बुक पब्लिश। तो जितनी बुक मैं पब्लिश करूंगा, पहले मैं बुक पब्लिश करूँ, बेचूं ना बेचूं बच्चों, क्या होगा, उसको तो एक रेंट दूंगा, उसे फिक्स्ड रेंट या डेड रेट बोलते हैं, उसको रेंट देना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसका हक लिया। अब मैं कॉपी बाजार में जितनी बुक बेचूंगा डबल एंट्री बुक कीपिंग का, उनकी लिखी हुई बुक को बेच रहा हूँ, तो फायदा मुझे हो रहा है, उस फायदे से पहला प्रॉफिट उनको देना पड़ेगा, मैंने एक रेंट, एक रॉयल्टी देना पड़ेगा जिंदगी भर। तो फिर भी हो, जिंदगी भर तो नहीं, उन्होंने अगर मुझे 4 साल के लिए एग्रीमेंट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं 4 साल तक उनका राइट यूज कर सकता हूँ, तो मैं 4 साल तक उसे एंजॉय कर सकता हूँ। 4 साल के बाद मुझे फिर से उनके पास जाके फिर से एग्रीमेंट एंड रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो 4 साल तक मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ, 4 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। वैसे बच्चों लाइसेंस भी देखना, आपके पास जो लाइसेंस होगा उस लाइसेंस में बच्चों एक्सपायरी डेट होता है। अगर किसी के पास लाइसेंस है, जो किसी घर में लाइसेंस है, पापा का, चाचा का, बड़े भैया का, तो जाके देखो तो उस लाइसेंस में एक एक्सपायरी डेट होगा। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, सम एसेट्स लाइक आपका लाइसेंस हो, पेटेंट्स हो, कॉपीराइट्स हो, बच्चों लूज देयर वैल्यू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड, आफ्टर द ई फ्लक्शन ऑफ टाइम। एक ई फ्लक्शन ऑफ सर्टेन पीरियड के बाद उनका वैल्यू कम हो जाता है बच्चों, दैट इज नोन एज, उसको बोला जाता है ई फ्लक्शन ऑफ टाइम, ई फ्लक्शन ऑफ टाइम। It is the another functional concept. Some assets like copyright, patents, license lose their value, बच्चे lose their value due to the after the expiry of a certain period. Due to the बच्चे effluxion of time, that's enough. Effluxion of time, that is known as effluxion of time, and it is another आपका cause of क्या है, depreciation, functional cause of depreciation. तो कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस इसका एक पीरियड के बाद खत्म हो जाता है, तो आप अपनी राइट खो देते हैं, तो आपको फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए बच्चों एक एसेट है और उनका एक्सपायरी हो जाना इज द डेप्रिसिएशन। एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है कितने साल के लिए, वो एक्सपायर हो गया तो खत्म हो गया। नेक्स्ट बच्चों, मूव टू दी नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट सो फार एज योर काउंसिल एग्जाम इज कंसर्न बच्चों, 1000% गारंटेड। 100% ये होता है नहीं होता, पर मैं अगर बोलो 1,00,000% ऐड कर दूंगा, ये तुम्हारे एग्जाम का गारंटेड क्वेश्चन है, इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 क्वेश्चन निकालूंगा एक पॉइंट से, तीनों ही एक जैसे, एक ही आंसर है तीनों का, बट तीनों घुमा फिरा के एग्जाम में आएगा, एक आएगा तीनों में, 2 भी आ सकता है, पर गारंटेड 1,00,000% भी बोल सकता हूँ। तो कितना इंपॉर्टेंट सोच लो, डिप्लेशन, DEPLETION, ऑब्सोलेंस हुआ OBSOLESCENCSE, इनएडिक्वेसी INADEQUACY, इफ्लक्शन ऑफ टाइम EFFLUXTION, इफ्लक्शन ऑफ टाइम, डिप्लेशन। क्लियर बच्चों? सो नाउ द पॉइंट इज आपका बच्चों डिप्लेशन। तो बच्चों डिप्लेशन क्या है? ध्यान से सभी सुने बच्चों। जैसे सपोज मैंने एक कोयला खनी ले रखा है, कोल माइंस को मैंने लिया है, या आयरन और माइंस, लोहा पत्थर खनी मुनीच, तो उस खनी से बच्चों मैं क्या करूंगा, लोहा पत्थर निकालूंगा, कोयला खनी से कोयला निकालूंगा, या ऑयल वेल, तैलों को, तेल का जो खादान है मैंने लिया है तो वहां से तेल निकालूंगा। तो बच्चों वो सब क्या होता है, यूजुअली बच्चों नेशनल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम उसको लेते हैं 4 साल 5 साल के लीज पे लेते हैं, रेंट पे, एंड हम जितना चाहें तेल निकाल सकते हैं, हमारी जितनी कैपेसिटी है, जितना तेल निकालेंगे हम गवर्नमेंट को उसके ऊपर पैसा भी देंगे। पहले तो उस लीज को लेने के लिए पैसा दोगे, प्लस जितना तेल निकाल के बेचोगे उसके ऊपर भी पैसा दोगे। तो बच्चों मैंने अगर एक खनी, मैंने एक माइंस को अगर लिया है, तो उसमें सपोज बच्चों तुमको अभी मेट्रिक टन वगैरह बताऊंगा तो तुम नहीं, सपोज उसमें 1 करोड़ चीज़ें हैं, 1 करोड़ टन कोयला है,
तो मेरी बात जो इंसान लेगा, मैंने जितने पैसे में लिया, मुझे बोला गया आप 5 साल आपका है, आप जितना निकालते, तो मेरी कैपेसिटी में जितने लेबर निकाल के लगा के माल निकालूंगा। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद बचा जो इंसान उस माइंस को लेगा, मैं ये लूँ या और कोई ले, तो उस वक्त का प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा? नहीं, कम हो जाएगा। क्योंकि अब 1 करोड़ है बच्चों, 5 साल के बाद वो माल कम हो जाएगा, क्योंकि उस खनी का वैल्यू बच्चों कम हो जाएगा ड्यू टू हमने एक्सट्रैक्शन किया मिनरल्स। जितना मिनरल्स निकालेंगे बच्चों उसका वैल्यू कम होता जाएगा, और उसके 5 साल के बाद और वैल्यू कम हो जाएगा। मे बी कोयला का रेट बढ़ सकता है, आपका आयरन ओर का वैल्यू बढ़ सकता है, क्रूड ऑयल का वैल्यू बढ़ सकता है, कच्चा तेल जो भी था वो, पर बच्चों ओवरऑल आपका सपोज पहले 2 रुपये था 1 टन का, अब 3 रुपये हो गया, दैट्स डिफरेंट। बट ओवरऑल बच्चों आप में इतने माल था, माल कम हो गया था, वो खनी का वैल्यू कम होते जाएगा। ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब प्राइस अगर नहीं बढ़ा होगा मार्केट में, तो देखना खनी का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि आप जो भी लेगा उसको 5 साल यूज करके माल निकालेगा, तो उसका वैल्यू कम हो जाता जाएगा, हम होते जाएगा। सो सम एसेट्स लाइक माइंस, ऑयल वेल्स, क्वायरीज मतलब पत्थर खनी, जो हमारा चिप्स वगैरह निकलते हैं, पत्थर निकलते हैं जिसको घर में लगाते हैं काम करते वक्त, रोड कंस्ट्रक्शन होते हुए लगता है। सो सम एसेट्स लाइक बच्चों ऑयल वेल्स हो, क्वायरीज हो, माइंस हो, लॉस देयर वैल्यू ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स या ऑयल्स कंटेंट इन इट। जितना हम एक्सट्रैक्शन करेंगे उसमें से जितना मिनरल्स, जितना भी खनिज द्रव्य जितना निकालेंगे, जितना तेल निकालेंगे ऑयल, उसका वैल्यू उतना कम होते जाएगा। एंड द रीजन बच्चों उसको बोलते हैं डिप्लेशन, धीरे धीरे कम होता जाएगा। दैट्स द पॉइंट बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनो, मैं अभी बता दूंगा, आंसर सभी को जिंदगी भर याद रह जाएगा, पर पहले इसका मीनिंग देखो। सम एसेट्स लाइक ऑयल वेल्स, माइंस, क्वायरीज लूज देयर वैल्यू ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ बच्चों मिनरल्स हो, स्टोन्स हो, आपका ऑयल्स हो, कंटेंट्स इन इट, जितना उसके अंदर है, जितना आप उसके अंदर से निकालोगे मिनरल्स को, उसका वैल्यू नेक्स्ट टाइम उतना कम होते जाएगा। एंड दैट इज द कॉज, वो कॉज है निकालना, एंड उसको बोलते हैं बच्चों डिप्लेशन। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है बताता हूं बच्चों। पहली बात, डिप्लेशन एक कॉज है, कॉज रीजन है। अब और एक बात बता रहा हूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से, डिप्लेशन एक मेथड भी है, डिप्लेशन एक मेथड भी है। अब बोलो सर मेथड क्या? बच्चों हम तो अभी डेप्रिसिएशन का बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं, कल से नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉब्लम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो बच्चों डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, तो बच्चों अलग अलग एसेट पे क्या होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं। मैंने आपको बोला ये 10 मेथड्स हैं, तो हमारे कोर्स में बच्चों से 2 मेथड है, हम 2 ही मेथड पढ़ेंगे। सो 10 मेथड में से हमें सिर्फ 2 मेथड्स पढ़ने हैं। जैसे आप लोग स्टैटिस्टिक्स में मेथड पढ़ते थे, कैसे मीन निकलेगा, डायरेक्ट मेथड, आपका शॉर्टकट मेथड, आपका स्टेप डेविएशन मेथड, उसके बाद शॉर्टेस्ट मेथड, जैसे मेथड था वैसे ही बच्चों डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। एंड हमारे कोर्स में बच्चों ओनली 2 मेथड्स हैं। वैसे ही बच्चों एक मेथड है डिप्लेशन, अभी डिप्लेशन में कॉज बोल रहा हूँ, एंड बाद में बच्चों आपको एक मेथड बोलूंगा। तो डिप्लेशन एक मेथड भी है। तो ये मेथड कहाँ एप्लीकेबल होता है? सिर्फ बच्चों ऐसी एसेट पे, ऑयल वेल्स, आपका कॉलेरी माने कोयला खनी, माइंस मतलब कोई भी खनी, कोयला खनी को कॉलेरी बोलते हैं, या क्वायरीज। तो ऐसी जगह पे कौन सा मेथड ऑफ डिप्लेशन यूज होता है? डिप्लेशन। कौन सा कॉज होता है डिप्लेशन का? डिप्लेशन। कौन सा मेथड होता है? डिप्लेशन। समझ में आया? तो अब क्वेश्चन क्या है? The method of charging depreciation applicable to oil wells, quarries, colliery is dash depletion. कौन सा मेथड बच्चे इन पे पढ़ता है? ये बुक में नहीं लिखा, पर ये क्वेश्चन है बुक में अंदर है। किस प्रकार का मेथड आपका इन सब एसेट्स पे चार्ज होता है? डिप्लेशन। ये आपको बता दे, कॉज भी है। ओके द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स हो, ऑयल वेल्स हो, क्वायरीज हो, फ्रॉम ऑयल वेल्स मैंने माइंड से निकालना, इज डैश कॉज डिप्लेशन। क्या कॉज है? डिप्लेशन। एंड विच मेथड इज एप्लीकेबल टू दीज एसेट्स? दैट इज आल्सो डिप्लेशन। 2 क्वेश्चन हो गए।
थर्ड क्वेश्चन घुमा फिरा क्या आता है, अभी बोलूं तो 4 मैथ क्वेश्चन भी हो जाएंगे बच्चों, चारों में से एक या दो, एक तो पूरा कंफर्म क्वेश्चन है। ये है बच्चों, डिप्लेशन मेथड इज एप्लीकेबल टू डैश एसेट। डिप्लेशन मेथड कौन सी एसेट्स पे चार्ज होता है? थोड़ा ऑप्शन आएगा बच्चों, फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, वेस्टिंग एसेट, बोल दी भी। ओके वेट बच्चों, सो बच्चों सभी को समझ में आया? सो डिप्लेशन मेथड इज एप्लीकेबल टू डैश एसेट, कॉलेरी, माइंस, क्वारीज, फॉरेस्ट में भी होगा। डिप्लेशन मेथड इज एप्लीकेबल टू डैश एसेट लिखा हो, कभी भी ऐसे एग्जांपल्स नहीं हो डैश एसेट, तो यू कैन राइट ओनली वेस्टिंग एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ऐसे लिखा एग्जांपल वेस्टिंग एसेट। बच्चों वेस्टिंग एसेट मतलब जिसको यूज करने से वो खत्म हो जाता है। हमने स्कूल में पढ़ा होगा, आप कहीं स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा बच्चों, भूगोल जो बोलते हैं आप लोग का, सामाजिक में, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, जिस रिसोर्सेज को यूज करने से बच्चों खत्म हो जाता है, तुरंत नहीं आता, फॉरेस्ट आ जाता है। पर बच्चों आपका कॉलेरी हो, क्वारीज हो, आयरन ओर हो बच्चों, ऑयल्स, ये सब नहीं आता, बहुत हजारों साल लग जाते हैं आने में। सो डिप्लेशन मेथड इज एप्लीकेबल टू डैश एसेट, वेस्टिंग एसेट। डिप्लेशन मेथड इज एप्लीकेबल टू डैश आइटम्स बच्चों, आपका डैश अगर एग्जांपल्स में होगा तो कॉलेरी, माइंस, क्वारीज, ये एग्जांपल हुआ। या इन केस ऑफ ऑयल वेल्स, माइंस, क्वारीज, व्हिच मेथड इज एप्लीकेबल? डिप्लेशन मेथड इज एप्लीकेबल। क्लियर? एंड इसी के साथ ए मेथड ऑफ ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू दिस एसेट्स बच्चों, वो भी डिप्लेशन। सो डिप्लेशन को कितने वे में आता है? एंड इन लास्ट 2 years आई फाउंड ए क्वेश्चन बच्चों जो आ रहा है बच्चों, गिव एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिंग एसेट। ऊपर आ जा रहा है डिप्लेशन मेथड इज एप्लीकेबल टू व्हिच एसेट? वेस्टिंग एसेट। फिर लिख दे रहा है क्या? एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिंग एसेट। एग्जाम्पल ऑफ वेस्टिंग एसेट बच्चों कॉलेरी, माइंस, क्वारीज, फॉरेस्ट, ऑयल वेल्स, ये सब हुआ वेस्टिंग एसेट। यहाँ पे कौन सा मेथड है? डिप्लेशन। कौन सा कॉज है? डिप्लेशन। डिप्लेशन इज ए कॉज, फंक्शनल कॉज। डिप्लेशन इज ऑल्सो बच्चों एक आपका मेथड और एक वेस्टिंग एसेट। व्हाट डू यू मीन वेस्टिंग एसेट? एनी एसेट जिसका यूज करने से वो the assets which are available but non renewable is known as wasting asset। देखो हर एक चीज बता रहा हूं, आई डोंट नो तुम कितना समझ रहे हो बच्चों, कितना समझ रहे हो। वेस्टिंग एसेट का मीनिंग भी बताया, ध्यान से समझो। an assets which are available but नॉन रिन्यूएबल वंस यू यूज इट, एक बार यूज करने के बाद बच्चों वो फिर से नहीं आएगा, दैट इज बच्चों वेस्टिंग एसेट। एंड एनी मेथड विच इज एप्लीकेबल देयर इज डिप्लेशन। द कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन डिप्लेशन, मेथड इज डिप्लेशन। क्लियर? सो दिस वन बी द गारंटेड क्वेश्चन ऑफ योर CHSE। नाउ मूव टू द बच्चों अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो आपका है दैट इज हुआ बच्चों आपका, ध्यान से सुने, एग्जेशन। सपोज बच्चों मेरे पास एक गाय है, बैल है, गाय सोच लो, बैल तो डिफरेंट चीज होगा, हाँ बैल ले सकते हो, बुलक जो बोलते हैं, या भैंस है, बफेलोज है, घोड़ा है, गधा है, जो भी है एनिमल से बच्चों। सपोज गाय है, मेरे साथ बहुत सारी गाय हैं, तो वो मुझे दूध देती हैं, हमें उनसे दूध, मतलब मिल्क फार्म मैंने बनाया हुआ है, तो उनसे हम लोग दूध निकालते हैं, निकाल के मार्केट में बेचते हैं। मिल्क प्रोडक्ट, चाहे मिल्क हो, चाहे कर्ड हो, दही हो, चाहे आपका पनीर हो, चीज हो, या आपका बटर हो, मक्खन हो, तो या घी हो, तो हम डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट निकाल के मार्केट में बेचते हैं। हमने एक फार्म बनाया है, काऊ का फार्म, जहां बहुत सारी गाय हैं, दूध निकालते हैं, दूध को बेचते हैं। पर एक गाय सपोज बहुत अच्छा दूध देती है, वो अच्छी देती है, तो बच्चों वो भी कितने साल तक देगी? उनकी कैपेसिटी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगी, फिर टाइम विल कम, वो लोग धीरे धीरे डाउन हो जाएंगे, दिन मर जाएंगी, बुढ़ी हो जाएंगी, एंड हमें और मिल्क नहीं प्रोवाइड करेगी। सो दैट्स द पॉइंट बच्चे। एक पेड़ है, हमने पेड़ लगाया, उससे बहुत फल हुए, बहुत फूल हुए, वो हमें बहुत फल देता है, उस फल को लेकर बाजार में बेचते हैं। पर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड वो बुढ़ा हो जाएगा, मरने की अवस्था में आएगा, वो हमें और नहीं देगा, हमें फल नहीं देगा। सो बच्चों दैट इज बच्चों, वो जो नहीं देगा, वो जो थक जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, उसकी हड्डियां काम नहीं करेगी, वो जो एनिमल, और वो घोड़ा हमारे लिए घोड़ा गाड़ी नहीं चला पाएगा, गधा सामान नहीं उठा पाएगा, फाइनली मरने की सिचुएशन में आ जाएगा। उस जो कॉज को बच्चों बोलते हैं एग्जेशन। एग्जस्ट, EXHAUST, एग्जेशन। सो बच्चों व्हाट इज एग्जेशन? सम
assets like animals हो, plantation हो, lose their बच्चों life after the expiry of a certain period. Some assets like animals, plantation, they lost their value after the expiry of their useful life. उनकी लाइफ खत्म होने के बाद उनका वैल्यू कम, that is known as exhaustion. So these type of assets बच्चों, एनिमल्स या आपका हाथी है, घोड़ा, ये सभी काम करते हैं इधर उधर सामान लेने के लिए, या कोई हमें हाथी को दिखा के पैसा कमाता है. सो बच्चों दीज एसेट्स को क्या बोला जाता है, किस प्रकार के एसेट्स में जाएंगे? लाइव स्टॉक, LIVESTOC की, ये लाइव एसेट्स है, हमारे पास जिंदा एसेट्स है जिससे हमें पैसा इनकम होता है. सर्कस में भी बच्चे लोग यूज करते हैं, चाहे वहां पे भालू को दिखाते हो, हाथी को दिखाते हो, वहाँ डॉग्स हों, जो भी घोड़े हों, जो भी वो दिखाते हैं, तो वो भी एसेट्स है बच्चों. वो भी अपनी लाइफ एक समय के बाद वो हमारे लिए काम करना छोड़ देते हैं. तो दिस टाइप ऑफ बच्चों, जो लॉस हुआ, जो वैल्यू कम हुआ, उसको बेचने में कोई लेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं बच्चों एग्जॉशन. इट इज अनदर फंक्शनल कॉज. वो बुढ़े हो जाएंगे तो उनका काम नहीं करेंगे, उनकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी. So this type of loss is known as exhaustion. So these are all about the बच्चों causes of depreciation and functional causes of depreciation, जिसे बोलते हैं आपका obsolescence, inadequacy, आपका effluxion of time, आपका हुआ depletion and exhaustion. Clear? तो होप सभी को समझ में आया. इसको अच्छे से पढ़ो. किसी को डाउट रहा मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछो. आई विल डिस्कस बिफोर आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास. बच्चों करने से पहले मैं आपको ये फिर से बता दूंगा, पूछूंगा. तो सभी इसको अच्छे से पढ़ें और मैंने जो एडवाइस दिया बोलें. अभी मुझे क्लास ओवर के बाद सभी रिप्लाई दें. क्या समझे? सभी मतलब सभी. आई थिंक इस जुलाई मंथ से आई विल स्टार्ट बच्चों कम्युनिकेटिंग विथ योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स से बात करना स्टार्ट करूंगा. एंड ओके, ठीक है बच्चों, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.